Hello everyone, this is Professor Pawan Chonkar and I welcome you in 19th lecture of Machine Design and Drawing 2, and our today's topic is coefficient of fluctuation of energy. Here before in a recent lecture we have discussed about the fluctuation of speed as well as the fluctuation of energy. So it is nothing but the difference between maximum and minimum speed in case of fluctuation of fluctuation of speed. And if you talk about the fluctuation of energy, it is the difference between maximum and minimum energy. Okay, now the topic is coefficient of fluctuation of energy. So it is defined as ratio of maximum fluctuation of energy to the work done per cycle. Okay, what we have discussed about the coefficient of fluctuation of speed, it was maximum fluctuation of speed to the mean speed. This was the definition of coefficient of fluctuation of speed. But if you talk about the coefficient of fluctuation of energy, it is what? The ratio of maximum fluctuation of energy, that means energy difference E1 minus E2 divided by work done. Okay, so let us discuss further. We know very well work done per cycle may be defined as work done, हम किसे कहते हैं? Work done is force into distance or the displacement. So in case of torque and angular displacement, so work done is, instead of force we use a torque, and instead of linear displacement we use angular displacement. So torque into theta will be the work done. Okay, where T mean stands for mean torque. मीन टॉर्क क्यों? जो हमने साइकिल देखी थी जिसमें हमने एक रेस्ट्रिक्टिंग मीन टॉर्क लाइन प्लॉट की थी, तो यहाँ पे रहेगा आपका मैक्सिमम टॉर्क, यहाँ पे रहेगा मीन टॉर्क, एवरेज टॉर्क वी कैन से. ओके, यहाँ पे रहेगी बेस लाइन. तो टी मीन विल बी द मीन टॉर्क एंड थीटा विल बी द एंगल टर्न इन रेडियन पर सेकंड. तो एंगल टर्न मतलब क्या? क्रैंक एंगल. Okay, so crank angle theta. In case of two stroke internal combustion engine, two stroke, तो angle turn कितना रहेगा? 2 pi. And whenever we talk about the 4 stroke internal combustion engine, angle will be 4 pi. क्यों? जिसे 2 stroke में suction and expansion ये stroke simultaneously होते हैं, और बाद में कॉम्प्रेशन एंड एग्जॉस्ट ये स्ट्रोक साइमल्टेनियसली होते हैं. तो यहाँ पे इसलिए साइकिल ये 2 पाई में कंप्लीट हो जाती है. ओके, इसका 1 पाई और 1 पाई 2 पाई में. बट इन केस ऑफ 4 स्ट्रोक एवरी स्ट्रोक इज इंडिविजुअल, सो इट नीड्स एंगल ऑफ 4 पाई. तो ये रहेगा आपका 4 स्ट्रोक के लिए, ये रहेगा 2 स्ट्रोक के लिए. नाउ मीन टॉर्क टी मीन in Newton meter may be obtained by using following equation. Equation कौन सा? पावर वाला. We know very well power equation is what? P is equal to 2 pi nt by 60. Okay, so T will be P into 60 by 2 pi n. So same thing has been written here. You can say यहाँ पे देखो टॉर्क इज P इंटू 60 बाई 2 पाई n. यहाँ पे बस ये जो पार्ट है 60 2 पाई n बाई 60, इसको रिप्लेस किया हमने ओमेगा से, बिकॉज वी नो ओमेगा इज 2 पाई n बाई 60. ओमेगा क्या है? एंगुलर स्पीड है इन रेडियन पर सेकंड, और n क्या है? आरपीएम है. सो P इज व्हाट? पावर ट्रांसमिटेड इन वैट, n इज व्हाट? स्पीड इन आरपीएम, एंड ओमेगा इज एंगुलर स्पीड इन रेडियन पर सेकंड. तो हमने लिख दिया यहाँ पे 2 पाई. इसलिए फिर इस टर्म को यहाँ पे टॉर्क क्या हो जाएगा? इक्वेशन टॉर्क इज इक्वल टू पावर बाय एंगुलर स्पीड इन रेडियन पर सेकंड. तो यहाँ पे हमने रिप्लेस कर दिया 2 पाई n बाई 60 को ओमेगा से. नाउ अगेन देयर इज वन मोर फॉर्मूला फॉर वर्क डन. सो वर्क डन पर साइकिल मे बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग फॉलोइंग रिलेशन also. So work done per cycle is
P इंटू 60/n। आप यहाँ पे फॉर्मूला देख रहे हो। सो अगेन P इज पावर, 60 is a numeric term used for the conversion of minute to second and small n। तो small n क्या है यहाँ पे? small n is number of working stroke per minute। okay, number of working stroke per minute। so suppose जैसे small n की वैल्यू यहाँ पे कैपिटल n क्या है? RPM सीधा सीधा। so कैपिटल N इन केस ऑफ टू स्ट्रोक इंटरनल कंबशन इंजन। अगर टू स्ट्रोक कंबशन इंजन है सीधा सीधा तो n इक्वल टू n। और व्हेन इट विल बी n/2 कब? व्हेन वी टॉक अबाउट दी 4 स्ट्रोक इंटरनल कंबशन इंजन। ओके, नाउ ये हो गया आपका वर्क डन। वर्क डन दो फॉर्मूले हमारे पास में। एक वर्क डन हमने यहाँ पे देखा सीधा सीधा, यहाँ पे देखो फॉर्मूला। वर्क डन इज पहला फॉर्मूला टॉर्क इंटू थीटा, या फिर उसका एक कन्वर्शन पावर इंटू 60/n, वेयर स्मॉल n इज नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक पर मिनट। ओके, लेट अस मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे देखो एक टेबल है जिसमें शो किया है कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी फॉर स्टीम एंड इंटरनल कंबशन इंजन। सो अलग अलग आईसी इंजन्स के लिए जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी है उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू शो की गई है। ओके, सो एंड सेम वैल्यू विल बी यूज्ड व्हेनेवर वी सॉल्व न्यूमेरिकल्स। तो जैसे ये प्रैक्टिकल वैल्यूज है जो डाटा बुक से हमने कलेक्ट की है। सो सिंगल सिलेंडर डबल एक्टिंग स्टीम इंजन, सो कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी इज 0.21। क्रॉस्ड कंपाउंड स्टीम इंजन, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजन सिंपली। ओके, इसका तो मैं इसलिए मैं कुछ खास एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, बस ये पर्टिकुलर इस टाइप ऑफ इंजन के लिए ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी ये वैल्यू हम डायरेक्टली यूज करेंगे। सो क्रॉस कंपाउंड स्टीम इंजन 0.096, सिंगल सिलेंडर सिंगल एक्टिंग 4 स्ट्रोक गैस इंजन। आई रिपीट, सिंगल सिलेंडर सिंगल एक्टिंग 4 स्ट्रोक गैस इंजन, the value of coefficient of fluctuation of energy is 1.93। 4 stroke single acting 4 stroke gas engine, sorry 4 cylinder single acting 4 stroke gas engine, the value of coefficient of fluctuation of energy is 0.066। and last one 6 cylinder single acting 4 stroke gas engine, the value of coefficient of fluctuation of energy is 0.031। ओके, 0.031 है ये। सो 0.031 इज द वैल्यू फॉर फ्लक्चुएशन कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी फॉर द गिवन इंजन। ओके, सो ये प्रैक्टिकल वैल्यूज है। जिस टाइप का इंजन रहेगा न्यूमेरिकल में उस टाइप का ये वैल्यू डायरेक्टली यूज होगी। वैसे इसका फॉर्मूला क्लियर है जो हम आगे देखेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी निकालते कैसे। तो हमने अभी रिसेंटली वो फॉर्मूला दिखा भी, इससे पहले आगे डिस्कस करेंगे जब हम डिस्कस करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन फ्लाईव्हील। सो अवर नेक्स्ट कंसेप्ट इज, नेक्स्ट पॉइंट इज एनर्जी स्टोर्ड इन फ्लाईव्हील। हमने फ्लाईव्हील के बारे में इससे पहले भी डिस्कस किया था कि व्हाट इज फ्लाईव्हील। इट्स अ मैकेनिकल एलिमेंट विच इज यूज टू स्टोर द एनर्जी। तो एक्चुअली इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? ड्यूरिंग द साइकिल, ड्यूरिंग द रन ऑफ इंजन, जब भी इंजन पे ज़्यादा लोड आएगा तो जो फ्लाईव्हील में एनर्जी स्टोर रहेगी वो इंजन को मिलेगी बाकी स्ट्रोक कंप्लीट करने के लिए। जैसे ही एक्स्ट्रा वर्क डन हो रहा है इंजन से, एक्स्ट्रा एनर्जी जनरेट हो रही है, तो वही एनर्जी फ्लाईव्हील में वापस दी जाएगी। सो इन बोथ केसेस क्या हो रहा है कि जब एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है फ्लाईव्हील से तो उसकी स्पीड इंक्रीज होगी। जब वो फ्लाईव्हील एनर्जी देगा इंजन को तब उसकी स्पीड डिक्रीज होगी। सो दैट इज अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फ्लाईव्हील। इससे क्या हो रहा है? इससे जो फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी है बस वो रिड्यूस हो रही है। आई रिपीट दैट सेंटेंस की फ्लाईव्हील नेवर मेंटेन द कांस्टेंट स्पीड ऑफ इंजन, इट ओनली रिड्यूसेस द फ्लक्चुएशन इन स्पीड एज वेल एज फ्लक्चुएशन इन एनर्जी। बस वो फ्लक्चुएशन कम कर रहा है, वो रिड्यूस नहीं कर रहा है। ओके, सो लेट अस डिस्कस द एनर्जी स्टोर्ड इन अ फ्लाईव्हील। उसका इक्वेशन क्या हो रहा है, उसका डेरिवेशन क्या है। तो इसके पहले सबसे पहले हमने कुछ कंसिडरेशन किया है। आप डायग्राम में देख रहे हैं तो सबसे पहला जो सर्कल यहाँ पे दिख रहा है आपको,
इट इंडिकेट्स दी शाफ्ट, और जो स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पे वो डेफिनेटली एक की वे होगा जिसमें की इंसर्टेड है। नेक्स्ट सर्कल क्या है? नेक्स्ट सर्कल है हब, दिख रहा है यहाँ पे आपको, ये हब है। ओके, स्लीव जिसको हमने बोला था। हब के ऊपर ये जो माउंटेड है, सॉरी मैं इसको इरेज ही कर देता हूँ। ओके, ये जो सर्कल है ये वाला, मतलब ये वाला सीधा सीधा, तो ये क्या है? दिस इज अ कम्प्लीटली रिंग। तो ये सर्कल क्या डिनोट कर रहा? जो डैश लाइन से है, दैट इट इज डिनोटिंग मीन डायमीटर ऑफ फ्लाईव्हील रिम। तो फ्लाईव्हील की जो रिम है उसका मीन डायमीटर है। तो ये इनर और ये आउटर हो गया सीधा सीधा। ओके, बाकी कंसिडरेशन देखो यहाँ पे। लेट स्मॉल m, इट इज अ मास ऑफ फ्लाईव्हील इन kg। ओके, कंप्लीट फ्लाईव्हील का मास हमने लिया m। के क्या लिया है? रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ फ्लाईव्हील इन मीटर्स। रेडियस ऑफ गायरेशन, ये हमने इससे पहले टॉम में भी डिस्कस किया था, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है? एक ऐसा एवरेज और मीन रेडियस जहाँ पे, जैसे सपोज एक रिजिड बॉडी हमने यहाँ पे कंसिडर की, ठीक है, और यहाँ पे इस प्लेन पे हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका कैलकुलेट करना है सपोज। तो यहाँ पे बहुत सारे ये जो डॉट शो हो रहे हैं, सपोज दीज आर दी मासेस m1, m2, m3, m4, m5। ओके, और ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमने लिए सपोज k1, k2। तो ये डिस्टेंस है सपोज k1, k2, k3। रेडियस ऑफ गायरेशन, तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है एक्चुअली? Among all these distances, we choose one distance as a radius of gyration k, at which moment of inertia of this body gives a same value as that of values of moment of inertia at a particular distance k1, k2, k3, k4। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो वैल्यू रहेगी वो सेम मिलेगी सभी डिस्टेंसेस पे एवरेजली। फिर इसको एक डिस्टेंस लिया हमने k, which is known as a radius of gyration। ओके, सो ये हो गया रेडियस ऑफ गायरेशन। अभी हमने डिस्कस किया मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, आई विल बी द मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड इट इज डिफाइंड एज I इक्वल टू m k स्क्वायर, वेयर m इज मास ऑफ दैट बॉडी, k इज द रेडियस ऑफ गायरेशन। ओके, इसलिए फिर इसका जो यूनिट क्या रहेगा? m k स्क्वायर, m इज मास इन kg एंड k इज रेडियस ऑफ गायरेशन इन मीटर, सो kg मीटर स्क्वायर। ओके, ये हो गया आपका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नाउ नेक्स्ट पोर्शन n1 एंड n2। n क्या है? स्पीड इन आरपीएम। सो मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड ड्यूरिंग साइकिल। ओके, मैक्सिमम मिनिमम स्पीड ऑफ व्हाट? फ्लाईव्हील, ये आरपीएम में काउंट किया। और ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, दीज आर दी मैक्सिमम एंड मिनिमम एंगुलर स्पीड इन रेडियन पर सेकंड। ओके, रेडियन पर सेकंड। लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड नाउ। अब यहाँ पे देखो n ओमेगा, n क्या था? आरपीएम है। ओके, स्मॉल जो कैपिटल सिंगल n विदाउट एनी सफिक्स n1 और n2 वो नहीं यूज़ किया। तो n क्या रहेगा? जैसे हमने यहाँ पे एक बार लिखा था कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड में, सो n1 प्लस n2 और n1 माइनस n2, सॉरी n1 माइनस था, n1 माइनस n2 बाय n। तो ये यहाँ पे ये टर्म क्या थी? दैट इज अ मीन और एवरेज स्पीड इन आरपीएम। ओके, सो लाइक दैट n इज व्हाट? मीन स्पीड ड्यूरिंग साइकिल इन आरपीएम। तो मीन एवरेज कैसे निकलेगा? n1 प्लस n2 बाय 2। ओके, एक्चुअली ये जो फॉर्मूला था n1 माइनस n2 बाय n, ये किस चीज़ का फॉर्मूला था? इट वॉज द फॉर्मूला फॉर कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। ओके, और सेम चीज़ को जब हमने एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में लिखा था वो हो गया था आपका ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2। तो दैट वाज कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड इन टर्म्स ऑफ एंगुलर स्पीड। ओके, अब यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम यहाँ पे n क्या है? मीन स्पीड। सो ओमेगा क्या हो गया? मीन एंगुलर स्पीड। ओके, सो मीन एंगुलर स्पीड इज व्हाट? ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाय 2।
आप लोग इसमें कंफ्यूज होना नहीं है। n1 माइनस एन टू बाई टू, n1 माइनस एन टू बाई एन क्या हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। यहाँ पे हमने ये एवरेज स्पीड निकाल के बताई है, n की जगह पे ये जो रेशो वाला n था, रेशियो की जगह पे हमने लिखा n1 प्लस एन टू बाई टू। इस फॉर्मूले में लिख सकते हैं, इससे पहले हमने वो डिस्कस किया भी है। ओके, नाउ ओमेगा इज व्हाट, मीन एंगुलर स्पीड इन रेडियन पर सेकंड। सो मीन क्या रहेगा, 1 प्लस 2 बाई 2, सीधा सीधा। नाउ सी कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, ये फॉर्मूला था n1 माइनस n2 बाय n। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, ओके। और इन टर्म्स ऑफ एंगुलर स्पीड ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाय ओमेगा, ओके। तो ये हो गया आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड इन टर्म्स ऑफ आरपीएम एंड इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ओके। नाउ वी नो दैट मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लाईव्हील, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। बस यहाँ पे हम फ्लाईव्हील के बारे में डिस्कस करें तो एम की जगह पे हम यूज़ करेंगे, मास की जगह पे यूज़ करेंगे मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वी की जगह पे यूज़ करेंगे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। सो लेट अस चेक द फॉर्मूला नाउ, इज इक्वल टू हाफ, मास की जगह पे मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज आई, एंड वी की जगह पे एंगुलर लीनियर स्पीड की जगह पे एंगुलर स्पीड ओमेगा। सो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ओके। आई की वैल्यू एम के स्क्वायर, सो फॉर्मूला हो गया आपका हाफ एम के स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओके, इन न्यूटन मीटर और जूल। नाउ एज द स्पीड ऑफ फ्लाईव्हील चेंजेस फ्रॉम ओमेगा 1 टू ओमेगा 2, स्पीड आइदर n1 टू n2 हो रही है या फिर ओमेगा 1 टू ओमेगा 2 हो रही है, तो जो चेंज आ रहा है उसमें मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी क्या आ रही है, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी विल बी E1 माइनस E2। स्पीड के बारे में कैसे लिखते थे हम, n1 माइनस n2, तो एनर्जी के लिए लिखेंगे हम E1 माइनस E2। सो चेंज दैट इज डेल E स्टैंड्स फॉर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी माइनस मिनिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या, हाफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस हाफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर, ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 स्क्वायर। तो कॉमन पार्ट क्या है, हाफ आई, सीधा सीधा ये हो गया कॉमन पार्ट, ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 स्क्वायर इतना बचा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है जस्ट लाइक इट इज रिटन एज लाइक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका एक्सपेंशन क्या है, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, वही लिखा हमने यहाँ पे, देखो हाफ आई एज इट इज ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 एंड ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, क्लियर। नाउ हियर ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इसको हम रिप्लेस कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखो अब ये फॉर्मूला ओमेगा का क्या था, ये ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2। तो यहाँ पे अगर ये 2 हमने इधर शिफ्ट कर दिया तो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 की वैल्यू क्या हो गई, ट्वाइस ओमेगा, सीधा सीधा ये हो जाएगी ट्वाइस ओमेगा। तो यहाँ पे वही रिप्लेस किया कि आई, एक्चुअली ये ऐसा लिखा है कि हाफ एज इट इज, आई एज इट इज, देन ट्वाइस ओमेगा, और बचा हुआ ब्रैकेट कौन सा, ये ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 ऐसे लिखा है। तो ये 2 ऑलरेडी कैंसिल किया है, इसलिए फिर आपको ये टर्म दिख रही है, क्या बचा फिर यहाँ पे आई, देन ओमेगा ओमेगा एंड ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, ओके। सो डेल ई कितना आया है फिलहाल, आई ओमेगा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। नाउ अगेन व्हाट वी कैन डू विद दिस ब्रैकेट ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, वी कैन मेक इट कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। कैसे, हमें पता है यहाँ पे देखो ऊपर कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड क्या है, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाय ओमेगा। तो यही ये टर्म मुझे यहाँ पे बनानी है सपोज, तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाय, अगर यहाँ पे नीचे ओमेगा तो ऊपर भी ओमेगा हमने एडजस्ट कर दिया, तो यहाँ पे ऑलरेडी ओमेगा था तो यहाँ पे कर दिया ओमेगा स्क्वायर, और नीचे भी ओमेगा लिख दिया, सो दैट वी कैन कैंसल एंड सेम टर्म विल रिमेन। सो आई ओमेगा स्क्वायर, एक एक्स्ट्रा ओमेगा हमने ऊपर और नीचे एडजस्ट किया, सो आई ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाय ओमेगा। तो ये क्या हुआ अभी ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट क्या हो गया, इट बिकम्स कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। तो हमने रिप्लेस कर दिया आई ओमेगा स्क्वायर एज इट इज, और ब्रैकेट को रिप्लेस कर दिया सी एस से। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, ये हो गया आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। सो अगेन
यूजिंग वैल्यू ऑफ आई की वैल्यू क्या थी एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़ और सी एज इट इज़। तो ये फॉर्मूला जो हो गया आपका, ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लाईव्हील। ओके, अगेन उसको थोड़ा सा रीराइट किया। वी नो दैट, जैसे ये जो टर्म है एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये क्या है यहाँ पे देखो, हाँ, ये जो मैं बॉक्स कर रहा हूँ इसमें देखो, देखो व्हाट इज ई, लास्टली इट इज हाफ एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो अगर मैं बोलूँ कि एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, तो 2 उधर जाएगा, तो इट विल बिकम ट्वाइस ई, ये 2 इधर जाएगा सीधा सीधा, सो ट्वाइस ई हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा देखो एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर सी एस कैन बी रिटन एज, तो एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की जगह पे हमने लिख दिया ट्वाइस ई और सी एस एज इट इज। दिस इज अ फाइनल formula for kinetic energy of flywheel. So radius of gyration K may be taken equal to the mean radius of the rim because thickness of rim is very small as compared to the diameter of rim. क्या बोला है यहाँ पे कि रेडियस ऑफ गायरेशन और मीन रेडियस ऑफ रिम आर दोनों इक्वल कर दिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन रेडियस मीन रेडियस से क्यों इक्वेट किया, क्योंकि जो थिकनेस है फ्लाईव्हील की रिम की वो बहुत ही कम है, इट इज़ जस्ट लाइक अ थिन शीट। इसलिए फिर जो M1 M2 हम लेते थे वो कुछ ज़्यादा वेरी नहीं हो रहे, एक पेपर पे सभी M1 M2 M3 लाए हो रहे, इसलिए फिर थिकनेस ज़्यादा नहीं है, इसीलिए जो फ्लाईव्हील के रिम की रेडियस है वही रेडियस ऑफ गायरेशन है, ऐसा कंसिडर किया, जस्ट बिकॉज थिकनेस बहुत ही कम है, वेरी स्मॉल। ओके, देयरफॉर K इज नथिंग बट दी R। तो फॉर्मूले में बस जहाँ पे K है वहाँ पे R रिप्लेस किया हमने। सो डेल E इज व्हाट M K स्क्वायर की जगह पे R स्क्वायर, ओके, ओमेगा स्क्वायर सी एस। वहाँ का पार्ट मैं इरेज करता हूँ। सो डेल E इज M R square omega square CS. Again we know V is omega into R, as omega is equal to V by R, so V is equal to omega into R, इसलिए फिर यहाँ पे ओमेगा R और ओमेगा जो है उसको रिप्लेस किया हमने V से। ओके, सो M R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को V स्क्वायर कर दिया, सो M V स्क्वायर CS। सो फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन मास ऑफ फ्लाईव्हील रिम मे बी डिटरमाइंड। ओके, फ्लाईव्हील रिम का जो मास है उस पे से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। ओके, क्लियर है? वन मोर थिंग इज देयर, जो मास ऑफ फ्लाईव्हील रिम जो है यहाँ पे मैं शो करता हूँ, 1 मिनट। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट दी मास ऑफ फ्लाईव्हील रिम। तो अगर हम मास ऑफ फ्लाईव्हील रिम के बारे में डिस्कस करेंगे, सपोज दैट विल बी, मास हम कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। सो एरिया क्या रहेगा रिम का, सबसे पहले तो सर्कमफ्रेंस दैट इज अ पाई डी। ओके, ये हो गया सर्कमफ्रेंस, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सपोज, तो ये रहेगा आपका वॉल्यूम और इनटू डेंसिटी। तो पाई डी तो ठीक है, डी का है मीन डायमीटर ऑफ रिम, पाई कांस्टेंट है, एरिया क्या हमने बोला, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दैट रिम। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो लेना है यहाँ पे जो कंसिडरेशन किया हुआ है, दैट इज सपोज योर रिम क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ रिम इज अ रेक्टेंगुलर, सीधा सीधा मतलब बी इंटू टी जस्ट लाइक। तो एरिया यहाँ पे सीधा सीधा रहेगा विड्थ एंड थिकनेस ऑफ रिम। जब रिम को हम कट करेंगे क्रॉस सेक्शनली तो विड्थ एंड थिकनेस सिंपली, एंड जो डेंसिटी है वो कंसिडर करनी है। सपोज कास्ट आयरन से बनी है तो कास्ट आयरन की डेंसिटी सपोज 72000 टू 7800 kg पर मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब, इतनी वेरी होती है अगर कास्ट आयरन की बात करते तो। माइल्ड स्टील से कास्ट आयरन के बीच में वेरी होगा। सो डिपेंड्स कौन सा मटेरियल है, उसके बेसिस पे जो रो है वो आपका डिपेंड करेगा। सो मेन इंपॉर्टेंट इज व्हाट, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम करेगा सीधा सीधा सर्कमफरेंस इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया।
और फिर डेंसिटी। तो और एरिया क्या रहेगा रिम के लिए, मतलब ये अगर रिम है आपकी तो यहाँ पे अगर कट करेंगे तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या रहेगा, एक रेक्टेंगल कंसिडर करना है। ओके, सो अगर कंसिडर करते, क्योंकि सिंपल डिजाइन कंसिडर करना है तो सिंपल डिजाइन विल बी द ओनली रेक्टेंगुलर और स्क्वायर। So this will be the width and this will be the thickness. That's it. Okay. So we'll stop here. Next portion we'll discuss in the next lecture. Okay. Thank you.